हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रम क्लासेस चैनल। दोस्तों, प्रम क्लासेस चैनल आपके साथ हर रोज एक नया टॉपिक शेयर करता है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, वो यदि आपने नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना होगा। क्योंकि दोस्तों, आज जो प्रम क्लासेस चैनल है वो आपके लिए सबसे पहले, ये दावा है हमारा कि सबसे पहले आप आज प्रम क्लासेस चैनल पर ही जानेंगे 12th का राजस्थान बोर्ड का। कौन सा? ध्यान से सुनिए, 12वीं का राजस्थान बोर्ड के 2025 के एग्जाम का सिलेबस और पेपर पैटर्न सबसे पहले आ गया आपके सामने। ब्रेकिंग न्यूज आज की यही है प्रम क्लासेस चैनल के मंच की। दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ नई चीजें जो कि सबसे पहले प्रम क्लासेस चैनल आपके साथ शेयर करने वाला है आज। यदि आपने आज सुन लिया तो दोस्तों, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, यह दावा है हमारा। दोस्तों, आज हम जो जानने वाले हैं पहले उस पर नजर कर लीजिए। एक नंबर 1, सिलेबस फॉर आरबीएससी बोर्ड एग्जाम सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2025। सेकंड, पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम और कम समय में तैयारी करने की टिप्स। और एक चीज जो सबसे बड़ी आपको जाननी है वो है, आज के हम चैनल में जो जानेंगे, आज के वीडियो में जानेंगे, वो है वो 5 गलतियां यदि आपने की तो दोस्तों आप के पास पछतावे के अलावा, प्रायश्चित के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। वो आज 5 गलतियां हम जानेंगे और उनके सुधार के तरीके भी जानेंगे दोस्तों, और वो भी प्रम क्लासेस चैनल के इस मंच पर। दोस्तों, तो आइए जुड़ते हैं हम प्रम क्लासेस चैनल के इस मंच पर। क्योंकि दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड के लिए तो हर कोई चैनल बना हुआ है, लेकिन राजस्थान बोर्ड के लिए, उनकी तैयारी के लिए बहुत कम नहीं, प्रम क्लासेस चैनल एक ही है जो राजस्थान बोर्ड की भी वही महत्व देता है जो कि सीबीएसई बोर्ड को दी जाती है। तो दोस्तों, आइए हम जान लेते हैं राजस्थान बोर्ड के एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस 2025 का। तो दोस्तों, जान लेते हैं। द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान BSER रिलीजेस द RBSC 12th exam pattern has been announced, has been released, and you will know first time at Pram Classes channel only. The exam pattern consists of marks distribution of each component of the exam, including subject wise marking scheme and exam duration. Friends, first of all we will know the exam pattern 2025. The Board of Secondary Education Rajasthan BSER releases the exam pattern for Rajasthan Board of Secondary Education 12th exam. The exam pattern of most of the main subjects is divided into a theory component of 80 marks and an internal assessment that will be 20 marks. The total exam duration, carefully listen. If you do not listen that sentence, you will be on a very big mistake, and that mistake will be very costly for you. The time duration, total exam duration will be 3 hours 15 minutes for each paper, each exam in BSER exam. Next, students can check the schedule on website when it will come, but the Pram Classes channel will provide you
today all things about the exam. The marks distribution of internal assessment is further divided into class test, project work, attendance and behavior, each of which has its own weightage. Candidates need to score at least 33%. How many? 33% to clear the RBSC 12th board examination. Minimum marks of passing is 33%. For some science subjects, the theory section has a weightage of 56 marks. Internal assessment is of 14 marks. And the practical section has a weightage of 30 marks. Right? Friends, students can directly download the exam pattern, but you will know at Pram Classes channel also that things. Friends, there is a different chapter wise marks distribution for each subject at Pram Classes channel, and you will know a preparation strategy that aligns with the marks weightage given to various chapters and topics. Students must maintain good behavior and high attendance in order to score full marks in the internal assessment section. That is very important. Now we will know the marking scheme. The marking scheme, student can have a look at the marks distribution for the theory and practical exams from the Pram Classes channel. Friends, there are many types of. The duration is 3 hours 15 minutes. Exam marks weightage 80 marks. Assessment, internal assessment at 20 marks. And passing marks, minimum passing marks is 33% all. Friends, if we go through the internal assessment marks distribution for RBSC Serious Secondary Exam, there are many things. Class test 10 marks, project work 5 marks, attendance 3 marks, and your behave towards the school and towards your teacher is 2 marks. So you should obtain all 20 marks. Now, RBSC 12th exam pattern English as compulsory subject. Candidates can check the pattern for the RBSC 12th board exams from the Pram Classes channel. Today's link or today's video. The weightage are section reading 15 marks, writing 15 marks, grammar 8 marks, Flamingo textbook 28 marks, Vistas supplementary book that is 14 marks, and total are 80 marks. Now friends, we will come on the point that is English theory exam 80 marks, reading 15 marks, comprehensive passage 1 type short answer question weightage 6 marks, passage 1 vocabulary based questions 3 marks, passage 2 multiple choices 6 marks. That will be on for English subject. Now, writing question paper and English reading section, that will be the same approximate. Now, we will come on the point, and that is
the mathematical topics, these are the same, but the total marks will be 56. According your chapter, according your subject, there will be marks, and there will be the distribution of marks. Friends, there is a thing which will be remembering for that. First of all, RBC 12 timetable generally published in December or January, but you will know today at Param Classes channel in this month only. That is expected 99%. Students need to aware of the precise release date to effective plan their study schedules according to Param Classes channel. Examination typically held in March. The date of the first exam is particularly significant as it establishes the framework for the subsequent exams. Students should ensure they are adequately prepared for the exam for the date. Important subjects such as mathematics, physics, chemistry, biology, and English are assigned specific dates. These core subjects often necessitate additional preparation time, so students should highlight these dates in their calendars. Practical examinations are typically scheduled either before or after the written exams. These dates are crucial for students in science and commerce. Date for result announcement, usually occurring in May or June, is significant for students as they prepare for future endeavors such as college admissions. Now friends, we come on our most important topic and point, that is timetable for exam. And the timetable is a crucial event for students, parents and educators. The timetable acts as the official schedule for examination dates, offering a structured framework for students to prepare thoroughly for the board exams. RBSc 12 timetable is published several months before the exam begins, generally around December or January. But at Param Classes channel, we will know the first time, सबसे पहले at Param Classes channel only. It contains comprehensive details regarding the dates, timings and subjects for which examination will take place. The timetable is thoroughly arranged to ensure adequate intervals between consecutive exams, enabling students to prepare effectively for each subject. It usually commences with common subjects such as English or Hindi, progresses to core subjects like mathematics, science, commerce and arts, and concludes with optional subjects. Releasing the RBSc 12 timetable signifies that onset of the final stage of exam preparation for students. With the examination dates specified, students can formulate a study plan that corresponded with the timetable. And the timetable is, we will know. The timetable we will know, but before that I will know the tips for preparing according to 12th RBC timetable. Release dates of RBC 12th timetable, create a customized study plan, distribute time among subjects according to hard and gap between examinations. Give more time to essential subjects such as mathematics, science or commerce, as they significantly impact your overall academic performance. Increase your study hours for these subjects
particularly if their examinations are scheduled earlier. Work through past examination papers and sample questions within the time constraints of the actual exam. Consistent revision is essential for information retention. Give time on a daily or weekly basis to revisit what you have learned. Regularly, physical activity can also alleviate stress and enhance focus. Now we come on the timetable of arts 12th exam, and first is psychology, that is 29th Feb. Public administration 1st March 2025. Informatic practices computer science 2nd March 2025. English 4 March 2025. Urdu literature, English literature, Hindi literature 5th March 2025. The exam has been arrived. Sanskrit language 6 March 2025. Physics, accountancy, geography 9th March 2025. The gap is very less between the exam. Painting 11th March 2025. Only 2 days gap for this exam. Hindi 13 March 2025. Hindi typing 15 March 2025. Only 2 days. General science philosophy only 1 day 16 March 2025. History, business studies, chemistry, agriculture chemistry 18 March 2025. Environmental science only 2 days 20 March 2025. Geology 21 March only 1 day. Next, agriculture, political science 2025, that is 21st March. Maths 23 March 2025. Home science 26 March 2025. Physical education 27 March, only 1 day. Get economic, biology, agriculture and bio, that is 28 March 2025. Rigveda, Krishna Yajurveda 30 March. Sociology 3rd April 2025 and vocational subject 4th April 2025. That is the art timetable. Now we come on the timetable 2025 for RBSc Commerce exam 12th class, and that is entrepreneurship 15th Feb 2025. Hindi elective Hindi core 19th Feb 2025. Cost accounting 21st Feb 2025. English elective retail 22nd Feb, only 1 day. Taxation 23 Feb 2025. Legal study 26 Feb. Mathematics 7th March. Physical education only 1 day, and that is 9th March. Languages 12th March. Marketing 14th March. Economics 16 March. Salesmanship 18 March. Political science 20 March. For accountancy 22nd March, only 2 days. Business studies only 1 day gap, 23rd March. Informatic practice, that is 27th March. That is the art and commerce timetable for exam 2025. Now we will come on the 12th science timetable 2025 or RBSc BSE. English 22nd Feb. Chemistry 22nd Feb. Yoga 1st March. Physics 4th March. Mathematics 9th March. Physical education 12th March.
लैंग्वेज 14th मार्च, साइकोलॉजी 15th मार्च, बायोलॉजी 19th मार्च और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस 2 अप्रैल। फ्रेंड्स, द टाइम टेबल इज ऑन योर स्क्रीन at Plum Classes channel. Now you should decide that how will be prepared, and the Plum Classes channel will help you to prepare in a big time, a few time, and you will be topper if you follow the tips telling you by Plum Classes channel. That is our condition, that is our promise. If you follow the tips, you will be topper in the list of 12th exam merit list. We assure you that you will be the topper if you follow the pattern you will of study telling you by Plum Classes channel. Now we will know about the preparation of BSCR board, because the BSCR board is very tough and typical board in the world, not in country, in the world. Friends, come, we will know in our language, that is Hindi. Friends, यदि हमने आज की डेट में सारा कुछ समझ लिया कि हमें तैयारी कैसे करनी है, तो दोस्तों हम कम समय में ही, हम आज ही यदि पढ़ाई में लगे तो कोई का माई का लाल नहीं है जो आपको रोक सके टॉपर बनने से। लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको अपनानी पड़ेगी वही टिप्स जो प्लम क्लासेस चैनल आपके साथ आज शेयर कर रहा है, आपके साथ साझा कर रहा है। दोस्तों, ये गुप्त रहस्य है, गुप्त बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा सिवाय प्लम क्लासेस चैनल के। तो दोस्तों, जान लेते हैं सबसे ज्यादा क्या जरूरी है। दोस्तों, 12th में करना टॉप, तो ऐसे बनाए प्लान। कैसे? जैसा कि प्लम क्लासेस चैनल बता रहा है, सिर्फ 4 महीने में हो जाएगी बोर्ड परीक्षा की ऐसी धुआंधार तैयारी कि कोई ये कह नहीं पाएगा कि आपने तैयारी 4 महीने में की है। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2025, दोस्तों बोर्ड एग्जाम एक नए युग की शुरुआत जैसी है। हालांकि एक होआ बनाया गया कि बोर्ड की एग्जाम है वो बहुत टफ है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है, इसका पेपर होता है। लेकिन दोस्तों, एक चीज बता दूंगा, यदि आपने इसे हल्के में लिया तो ये हावी नहीं होगा, यदि आपने इसे टेंशन में लिया तो ये आपके ऊपर हावी होकर आपको पछताने के लिए मजबूर कर देगा। तो क्या नहीं करना, पहले तो आपको डरना नहीं है, आपको सामान्य से लेना है इसको। ठीक है, एग्जाम हो जाएगा, लेकिन मेरा डेडिकेशन, मेरी तैयारी, मेरी निष्ठा और मेरा आत्मविश्वास कभी मैं डिगने नहीं दूंगा, ये ध्यान रखना है। दोस्तों, फरवरी से अप्रैल के बीच में एग्जाम होने वाली है और टाइम बहुत कम बचा है। शेड्यूल आ गया है जो आपने अभी जाना है 12th का। दोस्तों, 2025 में बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स इन दिनों फाइनल तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन जुटने से नहीं होगा, एक लाइन, एक लेंथ फॉलो करनी पड़ेगी। कब क्या करना है, कब क्या पढ़ना है, कब किसको टाइम देना है, ये हमें देखना पड़ेगा, तभी आप सही ढंग से तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों, आप चाहें तो ये जो 4-5 महीने की तैयारी है ना, इसे टॉपर भी बन सकते हैं। और एक चीज और बता दूं, उनसे आगे निकल सकते हैं जो कि पूरे साल पढ़ रहे हैं लेकिन उनके पास सटीक टिप्स नहीं है या उन्हें कोई सलाह देने वाला नहीं है प्लम क्लासेस चैनल जैसा। तो दोस्तों, आज जान लीजिए वो टिप्स क्या है। कई पूछते हैं क्या बोर्ड परीक्षा की तैयारी 4 महीने में संभव है? किसी परीक्षा की तैयारी करने के लिए पूरे साल मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन प्लम क्लासेस चैनल कह रहा है कि यदि आप चाहें तो कम समय में भी टॉपर बन सकते हैं। और इसके कारण क्या है, इसके टिप्स क्या है, वो आज जानने पड़ेंगे जो आपको फ्री में बताए जा रहे हैं बिना किसी पैसे के। और वो जान लीजिए, इसके लिए 4 महीने तक अपना पूरा फोकस सिर्फ बोर्ड परीक्षा पर ही करना होगा और आपको देखना होगा हर टिप्स
जो प्रम क्लासेस चैनल बता रहा है उसको ध्यान में रखना होगा, माइंड में, कि मेरे को इसका ध्यान रखना है। दोस्तों कुछ समय के लिए सोशल मीडिया व अन्य डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाकर रखने से भी बहुत मदद मिलेगी। जानिए आज के इस चैनल पर, आज के इस वीडियो पर, प्रम क्लासेस चैनल के, कि वो हम 12th में कैसे टॉपर बन सकते हैं। दोस्तों सवाल ये है 4 महीने बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करो? जवाब यह है कि हाँ हम कर सकते हैं और टॉपर भी बन सकते हैं, लेकिन जरूरत है तो प्रम क्लासेस के दिखाए रास्ते पर चलने की और उन टिप्स को अपनाने की जो कि आपको टॉपर बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने और 12वीं में टॉप करने के लिए अभी से कमर कस ले, तैयार होना पड़ेगा, तत्पर रहना पड़ेगा। अगले कुछ महीनों तक स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ाई करें और अपना वक्त बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। एक एक सेकंड कीमती है दोस्तों, एक एक सेकंड। दोस्तों आज हम जानते हैं कि कैसे हमें तैयारी करनी है। पहले तो है हमें फिक्स करना पड़ेगा स्टडी का शेड्यूल। उसके लिए क्या करेंगे? हमें बनाना पड़ेगा टाइम टेबल। नियमित पढ़ाई करने के लिए शेड्यूल बनाकर उसका पालन अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। चाहे आंधी आए, तूफान, हमें तैयारी करनी है। चाहे शादी आए, चाहे बर्थडे आए, कुछ भी आए, हमें हमारी तैयारी जोर शोर से रखनी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। सेकंड सेकंड कीमती है, सेकंड का हर हजारवां हिस्सा भी कीमती है। तो क्या करना पड़ेगा? कैटेगरी में बांटेंगे विषय को, सब्जेक्ट्स को कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में, जैसे कि सभी विषयों को उनके महत्व और कठिनाई के हिसाब से कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो कमजोर सब्जेक्ट है उनके लिए क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे स्टडी मटेरियल। परीक्षा की तैयारी करने के लिए किताबें, नोट्स और ऑनलाइन रिसोर्स इकट्ठा करेंगे। और ऑनलाइन रिसोर्स में प्रम क्लासेस चैनल का सबसे पहले नाम आता है, खोज लीजिए। दोस्तों जरूरी है पढ़ाई की जगह है। दोस्तों प्लेस ऑफ स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट ऑन अदर टॉपिक्स। दोस्तों पढ़ाई करने के लिए शांत, सौम्य और कंफर्टेबल जगह की जरूरत हो, वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। कहां? स्टडी टेक्निक्स पर करें फोकस। ये तो है टाइम मैनेजमेंट के। अब हमें फोकस करना पड़ेगा। हमने टाइम मैनेजमेंट भी कर लिया और उस स्टडी उस पीरियड के अनुसार, उस समय के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रही है। तो क्या प्रॉब्लम है वो हम करते हैं बात एक्टिव स्टडी। हमें रोजाना एक्टिवली स्टडी करनी पड़ेगी। रोजाना पढ़ाई करें, इनमें किसी तरह का ब्रेक ना आने दें। यदि 2 घंटे पढ़ना है सुबह 5 से 7 बजे तो पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रलय आ जाए, लेकिन मुझे पढ़ना है 2 घंटे। दोस्तों सबसे अच्छा पढ़ाई का समय भी बता देता हूं आपको। सबसे अच्छा पढ़ाई का समय सुबह 5 बजे उठकर आप पढ़िए। और दोस्तों ये गारंटी देता हूं मैं कि यदि आपने सुबह 2 घंटे पढ़ दिया, वो जिंदगी नहीं भूलेंगे। क्यों? इसका कारण पता है आपको? क्योंकि उस टाइम की चिल पहुंच से आप दूर रहते हैं। ना यातायात की आवाजें, ना कोई मोटर वाहन की आवाजें, न कोई किसी तरह की आवाजें, और केवल आप और आपकी किताब। ऐसा शांत माहौल आपको कहीं भी किसी भी समय नहीं मिलेगा। इसलिए जितना जल्दी सोएंगे उतना जल्दी उठेंगे, और जल्दी उठकर वापस सोए नहीं, ना अलार्म बंद करें, उठकर आपको पढ़ाई में लग जाना है, जुट जाना है। इसके अलावा नोट्स बनाएं, जरूरी टॉपिक्स के नोट्स बनाएं। और दोस्तों एक बात, तो नोट्स खुद बनाएं, खुद के बनाए नोट्स आप खुद समझ पाएंगे। अगला एग्जाम पैटर्न, परीक्षा का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम समझने के लिए प्रम क्लासेस चैनल तो है ही, और पिछले साल के प्रश्न पत्र भी हम देख सकते हैं, जो कि प्रम क्लासेस चैनल एग्जाम के दौरान आपके साथ शेयर करेगा और करता रहेगा। ग्रुप स्टडी, दोस्तों कई बार ऐसा लगता है कि कईयों की आदत है कि वो अकेले नहीं पढ़ सकते, तो ग्रुप स्टडी को महत्व देते हैं। तो फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई करने में, डाउट्स क्लियर करने में मदद भी मिलती है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे हो जो पढ़ाई करने वाले हो, भटकाने वाले नहीं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सी चीजें हैं, जैसे ऑनलाइन रिसोर्स ढूंढना, हमें ऑनलाइन रिसोर्स की मदद लेनी चाहिए। अब आता है कि पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी है मेंटल हेल्थ। दोस्तों हमने किताब भी रख ली, सारा कुछ तैयारी कर ली, उसी के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन हम सक्सेस नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा मेंटल हेल्थ काम नहीं कर रहा है।
तो हम क्या करें, आत्मविश्वास को बढ़ाएं, अपनी तैयारी पर भरोसा रखें। आत्मविश्वास नहीं, मैं तैयारी कर रहा हूं और जोर शोर से कर रहा हूं, मैं टॉपर बनूंगा और मुझे कोई भी चिंता नहीं है क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं तो सक्सेस टॉपर बनूंगा ही बनूंगा। दूसरा, तनाव कम करें। तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान आदि करें। मैंने क्या कहा, टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा, उसमें से कुछ समय मेंटल हेल्थ के लिए भी देना पड़ेगा, तभी आप ढंग से स्टडी कर पाएंगे। अगला है, लक्ष्य निर्धारित करें। अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स निर्धारित करें कि आज मुझे 2 घंटे में इतना पढ़ना है और कल मुझे इसे रिवाइज करते हुए 2 घंटे में और नया पढ़ना है, ये आपको तय करना है। दोस्तों, इसके अलावा समय प्रबंधन करें, टाइम मैनेजमेंट। टाइम सभी के पास 24 आवर्स है, किसी के पास 41 या 25 या 24.3 भी नहीं है। टाइम सबके पास उतना ही है, लेकिन आपको मैनेज आना चाहिए, टाइम का प्रबंधन करना आना चाहिए, क्योंकि टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन। दोस्तों, आगे है बोर्ड परीक्षा की बेस्ट तैयारी करने के लिए अपने टीचर से, शिक्षक से सलाह लें। यदि आपका बिहेव अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा, तो वो आपको खुशी खुशी आपको टिप्स बताएंगे जो कि सीक्रेट है टॉपर्स बनने के लिए, वो आपको बताएंगे। अगला है, पिछले सालों के टॉपर्स से बात करें। ऐसा नहीं कि यदि हम बात करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, नहीं, ज्ञान जहां से मिले वहीं से ले लें। दिमाग को खुला रखें, ब्रॉड माइंड रहें, नेगेटिव सोच ना रखें, नैरो माइंड ना बने, अपने कमजोर क्षेत्रों पर फोकस करें। कौन सा मेरा लिए कमजोर सब्जेक्ट है, उस पर फोकस करें। आपको पता लगेगा, आप तैयारी ढंग से कर पाएंगे। अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करें। कैसे करेंगे, मॉक टेस्ट, खुद टेस्ट लें, मॉक टेस्ट करें, तभी अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए कठिन मेहनत करने के लिए तैयार रहें कि मेरे को टॉपर बनना है और एक के दिमाग में टॉपर बनना है, बस टॉपर बनना है। आगे याद रखें, 4 महीने में 12वीं का टॉपर बनना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। दोस्तों, यदि आपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से पढ़ाई शुरू कर दी, जैसा कि परम क्लासेस चैनल बता रहा है, तो दोस्तों टॉपर बनने से तो कोई नहीं रोकेगा और 4 महीने में आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जो ये तैयारी है ये इसी की तरह करनी पड़ेगी दोस्तों, लेकिन इसके लिए कुछ और चीजें बता दें। एक तो टाइम टेबल बनाना है, दूसरा करना क्या, परफॉर्मेंस एनालिसिस करनी है कि परफॉर्मेंस एनालिसिस कैसे होगी। वो आपको खुद का टेस्ट होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, सारे करने पड़ेंगे। पूरी नींद लें और ब्रेक लें, पूरी नींद लेनी पड़ेगी, तभी आप जल्दी उठ पाएंगे। और मैंने क्या कहा, तभी आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ पाएंगे। जो टाइम आप सुबह का पढ़ाई को दे रहे हैं वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। 2 आवर्स भी आपके 6 आवर्स के बराबर आप पढ़ाई कर पाएंगे। और लेकिन बीच बीच में ब्रेक भी लें दोस्तों। ऐसा नहीं कि खाली हमें रट्टू तोता बनना है या हमें बुक वॉर्म बनना नहीं, हमें बीच बीच में ब्रेक लेना है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो मेंटली और फिजिकली रूप से बीमार हो जाएंगे दोस्तों। हम क्या कर पाएंगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, एग्जाम नहीं दे पाएंगे। रिवीजन करें, एक्सरसाइज मैक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। तो हमें करना क्या पड़ेगा, प्रैक्टिस पर ध्यान देना पड़ेगा। और दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा की तैयारी सब्जेक्ट के हिसाब से करें दोस्तों। जो कमजोर सब्जेक्ट है उनको ज्यादा समय दें, जिसपे आप स्ट्रेंथ है आपकी उसको थोड़ा सा कम देकर वो टाइम वीकर सेक्शन को दे तो ज्यादा सही रहेगा। शॉर्ट आंसर को पहले तैयार कर लें। दोस्तों, क्या होता है, एग्जाम के दौरान 1 या 2 दिन का आपके पास टाइम होता है, गैप होता है, तो उसके लिए आप पूरा नहीं पढ़ पाते, तो आपको नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट आंसर बनाने हैं, ताकि आपको रिवीजन कर पाए। किसी दूसरे का नहीं लेना है, आपको खुद को ही तैयार करनी है, तभी आप ढंग से समझ पाएंगे। इसके अलावा क्या करना है, प्रॉब्लम्स का कारण क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, इनको सबको ध्यान में रखना है। एकाग्रता के साथ हमें पढ़ना है। जब भी हम बुक ले तो हमारा ध्यान एक पर हो कि टॉपर बनना है, बस उसके ऊपर ध्यान रखना है। और एग्जाम के दौरान क्या ध्यान रखना है, उत्तर को पॉइंट्स में लिखें पहले तो, उसके बाद उनका डिस्क्राइब करें और जो भी पॉइंट लिखते हैं उसको अंडरलाइन करें। इसके अलावा डायग्राम बनाएं, डायग्राम को अच्छे से बनाएं, उनके अंदर नाम लिखें, उत्तर को टेबल बनाकर लिखें। कई ऐसे टिप्स हैं जो आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा सबसे पहले हेडिंग लिखें, उत्तर को अलग अलग हेडिंग में बांट दें, डेफिनेशन जितनी हो सके उतने दें। दोस्तों,
हर रोज 10 मिनट का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, स्थिर और शांत वातावरण में अध्ययन करें। ये कुछ टिप्स है दोस्तों। अब जो लास्ट की कुछ टिप्स है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं संक्षिप्त में। वो टिप्स हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते समय अपने नोट्स खुद बनाएं। कहा जाता है कि खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है, तो आपको नोट्स खुद को बनाने होंगे टॉपर बनना है तो। दूसरा है, बनाए गए टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करें। ऐसा नहीं कि टाइम टेबल बना लिया और आपका कुछ और मर्जी चल रही है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते समय खुद को बेहतर बनाने पर ज्यादा फोकस करें। अगला, समय का अच्छी तरह से सदुपयोग करें। किसी की मदद से ना डरें, मदद लें और मदद दें। बेड पर सोते सोते पढ़ाई ना करें, क्योंकि आपके दिमाग को थोड़ा आराम की जरूरत है। आगे, अपना मेंटली और फिजिकली हेल्थ का ध्यान रखें। रोज एक्सरसाइज करें, मन को हमेशा स्थिर रखें, पॉजिटिव वे रखें, पौष्टिक भोजन करें। हार्ड नहीं, हमेशा स्मार्ट वर्क करें। कौन सा? स्मार्ट वर्क, हार्ड नहीं। हार्ड वर्क तो बहुत करते हैं, लेकिन वो आगे वही बढ़ते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं। जो सवाल कठिन लगते हैं उन प्रश्नों को बार बार एक्सरसाइज करें, अभ्यास करें। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आते हो वो पहले सोल्व करें। यदि आपको लगता है कि आएंगे, बोर्ड परीक्षा में हमेशा अच्छी हैंडराइटिंग का उपयोग करें। कम रोशनी में कभी ज्यादा ना पढ़े, क्योंकि कम रोशनी आपकी आंखों पर नुकसान कर सकती है। मॉडल पेपर से ज्यादा प्रैक्टिस करें। मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करें। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और आईडी साथ में लें जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं। अब एग्जाम देते समय हमें क्या ध्यान रखना है वो जान लें, क्योंकि हमने तैयारी करनी और एग्जाम देते समय हमने कुछ गलतियां करनी, वो भी देख लीजिए। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और आईडी कार्ड साथ में रखें। बॉक्स में पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, इरेजर, बाकी जरूरतमंद जो चीजें हैं वो रखें, और बाकी जो है जो नहीं चाहिए वो नहीं ले जाए। 30 मिनट पहले एग्जाम सेंटर में पहुंच जाए। बैग, जेब, पर्स को अच्छे से जांच करके उसके अंदर किसी प्रकार की पर्ची ना रह गई, क्योंकि उसके लिए आपका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, एग्जाम हॉल में अपने रोल नंबर पर 10 मिनट पहले ही बैठ जाएं। उसके अलावा क्या करना है, पेंसिल, रबर, पेन और पेन बॉक्स में से निकाल कर रखिए। बोर्ड एग्जाम में साथ में अपनी हॉल टिकट भी ले जाए। हॉल टिकट पर अपना फोटो अच्छे से पेस्ट होना चाहिए। प्रश्न पेपर मिलते ही उसको ध्यान से पढ़ें। जो 15 मिनट है ना, 3 घंटे और 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने में लगाना चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट है आपका। आपको पता लग जाएगा आपको क्वेश्चन कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना है। जो भी प्रश्न आते हैं उसे सबसे पहले हल करें। वो 15 मिनट आप दे रहे हो ना, उसका ये फायदा है। प्रश्न नंबर को अच्छे से लिखें। फर्स्ट नंबर करें तो फर्स्ट नंबर लिखें। कितने मार्क्स का सवाल पूछा गया है उतने मार्क्स का उत्तर दें। ऐसा नहीं है कि आपको 1 नंबर का सवाल है, आपने पूरी रामायण लिख दी, उससे एक तो आपका नंबर काटे जाएंगे, प्लस आपका समय भी बर्बाद हो रहा है। दोस्तों, ये है। उसका सुपर टिप्स क्या है, इफेक्टिव तैयारी की स्ट्रेटेजी क्या है, बोर्ड की परीक्षा कैसे पढ़ाई करनी है, इसका हमने सारा जाना। रफ्तार और एक्यूरेसी में करें सुधार। आप दूसरा, सिलेबस का रिवीजन बार बार करें, जो कि आपको बार बार बताया जा रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए मैं आपको 5 चीजें बताने जा रहा हूं, खाली 5 चीजें। यदि आपने उनका ध्यान रखा तो आपका पछतावा नहीं होगा, और यदि आपने 500 गलतियां की तो आपसे बड़ा कोई पछतावा करने वाला नहीं होगा। पहला, डरे नहीं, डर को निकाले, बोर्ड के डर को। दूसरा, निरंतर अभ्यास करें या ना छोड़ें। तीसरा, कभी भी खुद पर एग्जाम की स्ट्रेस को हावी ना होने दें। चौथा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। पांचवा, टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो, और इसके साथ ही टाइम पर आप एग्जाम देने पहुंचे। यदि आपने 500 चीजों का ध्यान रखा तो दोस्तों कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको रोक सके एग्जाम में टॉपर बनने से। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो फ्रॉम क्लासेस चैनल का? दोस्तों, ऐसे वीडियो हम लेकर हर रोज आपके साथ आने वाले हैं, एग्जाम तक और एग्जाम से बाद में और एग्जाम से पहले भी। तो दोस्तों, आपका प्यार, आपका स्नेह, इन्हीं की बस हमें जरूरत है, ताकि हम उत्साहित होकर आपके लिए नई नई हर टॉपिक हर रोज लेकर आए। तो कल मिलते हैं हम इसी समय इसी चैनल पर। देखते रहिएगा परम क्लास चैनल, क्योंकि हर टॉपिक नया है, हर चीज नई है आज के इस वीडियो में। धन्यवाद।